Hello students, I am Meenu, Assistant Professor, GCW Bhavani Kheda. Today we are going to discuss about arithmetic micro operations. Now what are micro operations? Basically the operations executed on the data stored in registers are called micro operations. And a micro operation is an elementary operation performed on the information stored in one or more register. Example, shift, count, clear and load. They are different type of micro operations. लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑपरेशंस वो होते हैं जो भी हमारे रजिस्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और उन पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको हम माइक्रो ऑपरेशंस बोलते हैं. There are different types of micro operations. Basically, 4 types of micro operations are there. First one is register transfer micro operation. Second one is arithmetic. Third one is logic. And fourth one is shift. First one is register transfer micro operation. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है कि रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं. वो माइक्रो ऑपरेशंस जो भी हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रजिस्टर के अंदर और उन रजिस्टर से फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर जितने भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको हम रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. सेकेंड वन इज़ अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन. अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमरिक डाटा विच आर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स. एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म bit manipulation operation on non-numeric data stored in registers. And shift micro operations perform shift micro operations performed on data. Today we are discuss about first type of micro operation, that is arithmetic micro operation. Now in the arithmetic micro operations basic micro operations are addition, subtraction, increment, decrement, shift. Now in the addition micro operation, here R1 and R2 both are registers and R1 contains some content and R2 also contains some contents. The contents of R1 and R2 are added and transferred to the third register, that is register 3. It means we require 3 registers for addition. R1 and R2 get added and transferred to the register R3. And in the subtraction process, same here, R1 minus R2 is transferred to the R3, means the value of R1 minus R2 gets transferred to R3. But in digital computer, subtraction is not directly operated. Subtraction is performed by using 2's complement. Here we use the 2's complement of R2. And what 2's complement हम कैसे करेंगे? फर्स्टली R2 का हम 1's complement करेंगे और उसके अंदर फिर हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो हमारा R2 का 2's complement हो जाएगा. और जैसे ही R2 का 2's complement होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा हमारे सब्ट्रैक्शन के, दैट इज़ R1 माइनस R2. तो जब भी हमें सब्ट्रैक्शन प्रोसेस अप्लाई करना है बेसिकली हम उसके अंदर एडिशन प्रोसेस करते हैं और एडिशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं 2's complement करते हैं. और 2's complement करने के लिए हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर रजिस्टर के कंटेंट का 1's complement निकालना होता है और उसके बाद हमें उसके अंदर 1 ऐड करना होता है तो वो हमारे रजिस्टर के कंटेंट्स का 2's complement होता है और उसी में हमारा सब्ट्रैक्शन प्रोसेस अक्कर होता है. नाउ एडिशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी एडर का. बेसिकली डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक सम ऑफ 2 बिट्स एंड द प्रीवियस कैरी इज कॉल्ड फुल एडर. अगर हमारे पास 2 बिट हैं और पहले से ही कोई कैरी आई है तो उसको ऐड करने के लिए हमें
सर्किट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ फुल एडर। और दो बाइनरी नंबर किसी भी लेंथ का अगर हम एडिशन करते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बाइनरी एडर। तो बाइनरी एडर के अंदर हम कितने भी बिट का कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, वेदर इट इज़ 4 बिट नंबर, 3 बिट नंबर, 2 बिट नंबर, 5 बिट नंबर, एनी बिट नंबर वी कैन टेक। Now, here is the diagram of the binary added. Here we use 4-bit binary number. Now, from A0 to A3, that is first number. B0 to B3, that is second number. And we use 4 full adders for adding 4-bit binary number. That is A0 B0, A1 B1, A2 B2, and A3 B3. In the full adder, we also consider the previous carry. Okay, now full adder adds A0 and B0 and carry, that is C in, and produces output, that is S0 and C0. S0 is the sum of the A0, B0 and C in, and C0 is the carry from the first full adder. And C0 is taken as an input for the second full adder, and A1 B1 are the bits for the full adder, and it produces the sum bit, that is S1, and the carry bit, that is C1. Again C1 is taken as a input for the third full adder, and A2 B2 are the input for the third full adder, and produces S2 and C2, that is sum bit and carry bit. And again C2 is taken as the carry bit for the fourth full adder, and A3 B3 are the input for the full adder, produces S3, that is sum of the fourth full adder, and C out is the final carry out. तो हम जब भी दो नंबर लेते हैं 4 बिट के, तो हमारे पास सम प्रोड्यूस होगा और कैरी प्रोड्यूस होगी। तो सम हमारे पास क्या है, S0, S1, S2, S3, और हमारे पास एक कैरी आएगी, दैट इज C out. दिस इज द डायग्राम ऑफ द बाइनरी एडर. हेयर the description of the binary adder, that is the augments bit of A and addend bits of B are designated by subscript numbers from right to left, with subscript 0 denoted the loader bit. The carries are connected in a chain through the full adder. जो भी हमने carry ली, that is C0, C1, C2 and C3 and finally C out. तो वो एक chain बनाती है हमारी हर एक full adder में. And the input carry to the binary adder is C0 and the output carry is C4, C out. Basically, and the S output of the full adders generate the required sum bit, that is S0, S1, S2, S3 and so on. An n bit binary adder requires n full adders. जितने बिट बाइनरी हम लेंगे उतने ही हमारे पास फुल एडर्स की रिक्वायरमेंट होगी. नाउ बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर. द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस आर कंबाइंड इन वन सर्किट by including an exclusive OR gate with each full adder. exclusive OR gate से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही सर्किट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. उसके अंदर हम लेंगे एक मोड इनपुट कंट्रोल, दैट इज़ नेम्ड एज K. जब K की वैल्यू हमारी 0 होगी तो सर्किट क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन का काम करेगा. और जब व्हेन K इक्वल्स टू 1, K की वैल्यू 1 होगी तो हमारा जो सर्किट है वो एज ए सब्ट्रैक्टर काम करेगा. इट मीन्स उसके अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगी. ईच एक्सक्लूसिव OR गेट रिसीव इनपुट K एंड वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ द B. नाउ सी इन द डायग्राम, हेयर इट इज़ द कंट्रोल K, and control K is taken as input for the exclusive OR gate, and also B bit number is taken as input for the exclusive OR gate. K की वैल्यू जब 0 होगी तो K की वैल्यू 0 होगी तो हमारा जो फुल एडर है वो क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन का काम परफॉर्म करेगा. जब K की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो जो हमारा फुल एडर है वो किसका काम करेगा, सब्ट्रैक्शन का काम करेगा.
और हमारे पास 4 बिट नंबर हैं, दैट इज़ A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3 एंड B3। और वो प्रोड्यूस क्या करेगा, हमारे पास सम बिट प्रोड्यूस करेगा S0, S1, S2, S3 एंड कैरी आउट एंड प्रीवियस कैरी, दैट इज C in। नाउ व्हेन K इज इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास क्या होगा, B XOR 0, क्योंकि प्रीवियस डायग्राम में देखो एक्सक्लूसिव और के पास हमारे पास K की वैल्यू आ रही है एज वेल एज B की वैल्यू आ रही है, तो हम किसका एक्सोर करेंगे, B XOR 0 का। तो B XOR 0 हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, B। एक्चुअली B XOR 0 मीन्स B 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट 0। तो हमारे पास B 0 कॉम्प्लीमेंट आ गया B प्लस B कॉम्प्लीमेंट 0 इट 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो फुल एडर रिसीव द वैल्यू ऑफ B एंड इनपुट कैरी इज 0 एंड सर्किट परफॉर्म्स A प्लस B, दैट इज एडिशन। अगर हमारे पास K की वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या होगा, B XOR 1, इट मीन्स B XOR 1, उसका मतलब है B 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, B 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स B 0 इंटू में 0 दैट इज 0 प्लस, और B कॉम्प्लीमेंट 1 मीन्स B कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास क्या आता है, B कॉम्प्लीमेंट आता है। और C वो की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो B इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो गया और 1 हमारे पास ऐड हो गया। तो बेसिकली ये क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब भी हम किसी के साथ टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं तो वो बेसिक ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, हमारा सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब K की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन का। नाउ बाइनरी इंक्रीमेंटर, बेसिकली बाइनरी इंक्रीमेंटर क्या करता है, द इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन एड्स 1 टू अ नंबर इन अ रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर जो भी नंबर है उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट कर देता है। सपोज वी हैव अ 4 बिट रजिस्टर एंड हैज़ अ बाइनरी नंबर दैट इज 0110। जब भी हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, और 1 ऐड होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 1 1 1 जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे। एंड दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ हाफ एडर्स कनेक्टेड इन कैस्केड। एक साथ हम जब हाफ एडर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एज ए वो बाइनरी इंक्रीमेंटर सर्किट वर्क करेगा। सी इन द डायग्राम 4 हाफ एडर्स हैं हमारे पास A0 वैल्यू है, A1 है, A2 है एंड A3 है, और हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हम क्या दे देंगे, वैल्यू 1 दे देंगे। तो 1 देने के बाद हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा, हाफ एडर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा, प्रोड्यूस क्या करेगा, S0, और जो भी कैरी होगी वो एज ए इनपुट वर्क करेगी सेकेंड हाफ एडर के लिए। अगेन सेकेंड हाफ एडर प्रोड्यूस करेगा S1, और जो भी ये कैरी प्रोड्यूस करेगा वो फिर एज ए इनपुट वर्क करेगी थर्ड हाफ एडर के लिए। थर्ड हाफ एडर फिर क्या करेगा, A2 प्लस जो प्रीवियस कैरी आई थी उसको ऐड करेगा और प्रोड्यूस करेगा S2 वैल्यू, एंड अगेन जो भी कैरी आई है उसको फिर वो नेक्स्ट हाफ एडर को दे देगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा, और हमारे पास कैरी आउट आ जाएगी। तो ये है हमारा बाइनरी इंक्रीमेंट। बेसिकली बाइनरी इंक्रीमेंट सर्किट क्या करता है, हमारा 1 ऐड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर बाइनरी इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होती है रजिस्टर के अंदर। नाउ one of the input to the least significant half adder is connected to logic 1 and the other input to connected to the least significant number to be incremented। जो भी हमें इंक्रीमेंट करना है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर एंड लॉजिक 1 को हम किस में दे देंगे, एज ए इनपुट हाफ एडर में दे देंगे, और आउटपुट जो आएगा हमारा वो एज ए इनपुट करेगा वो नेक्स्ट हायर ऑर्डर हाफ एडर के लिए। जैसे हमने देखा कि हमारे पास 4 बिट है, दैट इज़ A0 से A3 तक, वो ऐड 1 टू इट, हम 1 ऐड करेंगे और वो जनरेट क्या करता है, सम जनरेट करता है S0 से लेकर S3 तक, और आउटपुट कैरी जो फाइनल आउटपुट कैरी है वो C4 आती है।
अगर वो विल बी वन ओनली आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द बाइनरी डबल वन डबल वन। सी फॉर हमेशा वन तभी आएगी जब हमारी जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो वन होंगी। दिस ऑल्सो काजेज आउटपुट S0 थ्रू S3 टू go to 0. The least significant bit must have one input to the connected logic 1 and the other input receives the number to be incremented or carry from the previous stage. This is how binary incrementer work. Now we have discussed about the binary adder subtractor and binary incrementer. In the next lecture, we will discuss about the arithmetic circuit. Thank you.